Hello students, till now in chemistry of class 9 chapter 2nd matter in our surrounding we learned 5 states of matter: solid, liquid, gas, post-Einstein condensate and plasma state. In this we learned about solid, liquid and gas. These 3 states of matter we learnt in detail. In this we learned how these 3 states of matter exist, what are the differences, what are the properties, and now in the upcoming lecture we will be learning how these state of matter can be changed. तो अब हम पढ़ेंगे कि क्या ये states of matter solid can be converted into gas or gas can be converted into liquid, or means they are interconvertible or they can change their state to each other or not. So definitely they can change their state, and matter can change their state by 2 ways. First is by changing the temperature. By changing the temperature मतलब अगर हम मैटर के टेम्परेचर को चेंज करें तो अपने स्टेट को चेंज करेगा. सेकंड इज बाय चेंजिंग द प्रेशर, मींस अगर हम प्रेशर को भी चेंज करें तो भी मैटर अपना स्टेट चेंज करेगा. दैट मींस solid can change into liquid, and you can see the back arrow also. You can see the back arrow. That means liquid can also be changed into solid, and this liquid can change into gas, and gas can change into solid. So all these 3 states of matter are interconvertible. They can change their state, right? You can see in the figure, solid liquid में convert हो सकता है, liquid gas में, gas solid में, solid means they can interchange there. In this next figure you can see conversion of solid into liquid is known as fusion, right? Conversion of solid into liquid is known as fusion. Melting, आप इसे melting के नाम से जानते हैं, but scientific term में इसे fusion बोलेंगे. So this is known as fusion. And conversion of liquid back into solid is known as solidification, right? This is known as solidification, right? Second is liquid. Liquid can change into gas by vaporization. The process is known as vaporization. Written here you can see vaporization. आप इसको जानते हैं, 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं. Vaporization. And conversion of gas back into liquid. Gas back into liquid is known as condensation. Vaporization, जैसे आप यहां से चलिए प्रोसेस, चलिए सब्लिमेशन पढ़ा के इसको कंफर्म करता हूं. और गैस का वापस सॉलिड में बदल जाना या सॉलिड का डायरेक्ट गैस में बदल जाना इज नोन एज सब्लिमेशन. बोथ द प्रोसेसेस आर नोन बाय द सेम टर्म, दैट इज सब्लिमेशन. चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं. यहां पर देखिए, यहां पर कोई हीट सोर्स है, यहां पे कोई हीट सोर्स है और ये इसको बर्न हो रहा है. इसमें हम आइस भर देते हैं. ये आइस जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, दिस आइस विल गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. एंड दिस लिक्विड विल change into vapor. That means gas state. This is solid converted into liquid, and liquid converted into gas state. Suppose we have a lid. हमने इसको इस तरीके से एक ढक्कन लगा रखा है. This gas will go and settle here. On the top of the lid and will again get converted into liquid. हालांकि सॉलिड में नहीं चेंज होगा क्योंकि इसका सिस्टम का टेम्परेचर काफी ज्यादा है. आपने देखा होगा जब कभी आपकी मम्मी किचन में रोटी बनाती हैं या सब्जी को ढक करके रखती हैं तो थोड़ी देर, या रोटी को जब ढक के रखती हैं तो रोटी थोड़ी देर बाद गीली हो जाती है. ऐसा इसलिए क्योंकि लिक्विड में से जो वेपर निकल रहे हैं वो जा करके ढक्कन से चिपक करके जब वो वापस दे विल गेट कूल, दे विल अगेन गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, और इस वजह से आपकी वो रोटी जो है वो गीली हो जाती है. इसीलिए आपकी मम्मी रोटी को कपड़े में या किसी चीज में, पेपर में लपेट के रखती हैं. ध्यान दिया होगा आपने इस चीज पे. तो ये है इस चीज के पीछे का कारण. अब हम जरा इन सब चीजों को थोड़ा और कुछ नए टर्म सीखते हैं और आगे आने वाले चीजों को थोड़ा सा सीखने की कोशिश करते हैं. इसमें जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. पहले हम जरा डेफिनेशन देखते हैं. दोनों की 2 टर्म्स हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. तो पहले हम जरा इन दोनों टर्म्स को समझते हैं, उसके बाद हम लेटेंट हीट समझेंगे क्या होता है. ये दोनों टॉपिक इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, और साइंस को समझने का और मैटर की जो स्टेट चेंज होती है उन दोनों को समझने में ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस लेटेंट हीट के बेसिस पे आगे कई क्वेश्चंस फ्रेम होंगे. ढेर सारे क्वेश्चंस फ्रेम होंगे, लेकिन उसका आंसर एक ही होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. तो इसको हम थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों, इस पे ध्यान दीजिएगा आप.
पहला लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट. यू कैन सी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट energy, amount of heat energy that is required to change 1 kilogram of solid into liquid. Means solid is getting converted into liquid at atmospheric pressure. Atmospheric pressure मतलब ये जो बात कही जा रही है ये प्रेशर कुकर के अंदर नहीं हो रहा है या किसी वेसल में नहीं हो रहा है, ये ओपन एयर में हो रहा है. At atmospheric pressure at its melting point is called latent heat of fusion. Atmospheric pressure होता क्या है? जैसे ये एक कंटेनर है, ये कंटेनर है, ध्यान दीजिएगा, ये कंटेनर है. आपको पता है हमारा जो अर्थ है इसके अगल बगल हवा की एक लेयर है जिसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर. इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर. ये एटमॉस्फेयर हवा अर्थ की सरफेस पे इस एयर का कुछ वेट होगा, इस एयर का कुछ वेट होगा. जैसे हमारे ऊपर कोई चढ़ जाए तो हम अपने ऊपर एक प्रेशर महसूस करेंगे, इसी तरह अर्थ के ऊपर ये जो हवा की मोटी लेयर है ये इसके ऊपर एक प्रेशर बिल्ड करती है जिसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो जरा अब हम इस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को देखते हैं क्या है. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जैसे हम 1 किलोग्राम आइस ले लें, हम 1 किलोग्राम आइस ले लें और इस आइस को हम ओपन वेसल में मेल्ट करें. इस आइस को हम ओपन वेसल में मेल्ट करें. मेल्ट होकर के ये आइस का एक सिंगल पार्टिकल जब मतलब पूरा का पूरा आइस जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, आखिरी पार्टिकल भी जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उस समय जितनी एनर्जी रिक्वायर हुई इस 1 किलो आइस को लिक्विड में कन्वर्ट होने में, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. राइट. सपोज यहां पर हमने 526 किलो कैलोरी हीट सप्लाई किया है किसको? आइस को. 1 किलो आइस को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए. तो इसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना हो जाएगा? 526 किलो कैलोरी पर किलोग्राम. राइट. सो मेरे ख्याल से अभी डेफिनेशन आपको क्लियर होगी दैट द अमाउंट ऑफ हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी that is required to change 1 kilogram of ice. You can see in the figure 1 kilogram ice or solid, 1 kilogram of solid or ice into liquid at atmospheric pressure at its melting point is called latent heat of fusion. मतलब जब ये पूरा आइस मेल्ट होकर के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उस 1 किलो आइस को लिक्विड में टोटली कन्वर्ट करने के लिए जो हीट एनर्जी रिक्वायर है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. मेरे ख्याल से अब ये टर्म एकदम क्लियर होगा आपको. दूसरा latent heat of vaporization. What is same definition है? The amount of heat required to change 1 kilogram of liquid into vapor at atmospheric pressure at its boiling point is called latent heat of vaporization. Right. तो 1 किलोग्राम हम यहाँ आइस की जगह अगर हम वाटर ले लें, आइस की जगह वाटर लें, तो इस 1 किलोग्राम वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर होगा उसको हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. राइट. मेरे ख्याल से ये दोनों डेफिनेशन अब आपको क्लियर हो गई हैं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है. तो ये है दोनों टर्म्स का क्लियर है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में जो हीट एनर्जी रिक्वायर हुई उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वो है कि 1 किलो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए या वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड हुई उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. अब क्वेश्चन ये है कि हम इसे यहाँ पे डायरेक्ट हीट एनर्जी बोल सकते थे, हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट हीट एनर्जी बोल सकते थे, लेकिन हमने इसको डायरेक्ट हीट एनर्जी ना बोल के हमने इसे बोला है लेटेंट हीट. लेटेंट हीट कुछ कारण होगा, देयर मस्ट बी सम रीजन, देयर मस्ट बी सम रीजन. तो रीजन ये है, लेटेंट हीट इज अ ग्रीक वर्ड, लेटेंट इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स हिडन, विच मीन्स हिडन. हिडन मतलब छुपा हुआ. राइट. हिडन मीन्स छुपा हुआ. तो क्या होता है, हमने इसे लेटेंट हीट क्यों कहा? देखिए सपोज ये आइस है, ये 1 किलो आइस है, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में पास पास होंगे. राइट. दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, अब अगर हमें इसे लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हमें इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, लिक्विड का स्ट्रक्चर कैसा था? लिक्विड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर थे, आपको याद होगा मैंने पहले पढ़ाया है. तो
ये पार्टिकल्स दूर दूर कब जाएंगे? जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें कुछ एनर्जी रिक्वायर होगी, हमें कुछ एनर्जी रिक्वायर होगी। तो अगर हमने इस वेसल में एनर्जी को सप्लाई किया, एनर्जी सप्लाई किया, तो क्या होगा? थोड़ी देर तक जो एनर्जी हमने सप्लाई की वो यूज हो जाएगी किसमें? इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए। और ये जो एनर्जी होगी ये हमें थर्मामीटर अगर हम लगाएंगे तो उसका, मान लीजिए ये सॉलिड आइस है, आप इसको ऐसे समझिए, सॉलिड आइस है। अगर हम यहाँ पे थर्मामीटर लगा दें और हम यहाँ पे हीट सप्लाई करें, हम 5-10 मिनट तक हीट सप्लाई करते रहेंगे, लेकिन थर्मामीटर 0 की 0 रीडिंग दिखाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि जो भी हीट हम सप्लाई कर रहे हैं वो सारा का सारा हीट कहाँ चला जा रहा है? इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए। और यही एनर्जी जो रिक्वायर होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए, ये टेम्परेचर में इंक्रीज तब तक नहीं दिखाई देगा जब तक सारे सॉलिड पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक ना हो जाए, तब तक वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। सो दिस इज नोन एज फोर्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन, क्योंकि ये लेटेंट हीट टेम्परेचर थर्मामीटर में दिखाई नहीं देगा। सो दिस इज अ फॉर्म ऑफ हिडन हीट, दिस इज अ फॉर्म ऑफ हिडन हीट। एक बार ये सारा सॉलिड आइस कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, तो टेम्परेचर इसका थर्मामीटर का बढ़ना दिखाई देगा और टेम्परेचर पहुंच जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। अगेन 100 डिग्री पहुंचने के बाद, 100 डिग्री पहुंचने के बाद, सपोज ये थर्मामीटर है, 100 डिग्री पहुंचने के बाद फिर से टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अब दो लिक्विड पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो रहा है और वो किस में कन्वर्ट होगा? गैस में, राइट। तो जब तक एक भी लिक्विड का पार्टिकल है, लिक्विड ड्रॉप है, तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं शो करेगा, और इसीलिए इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मींस इट इज अ फॉर्म ऑफ हिडन हीट। तो इसको आप थोड़ा पढ़िएगा, और ये दो पॉइंट जो हैं, कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ये पढ़ लीजिएगा, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये दो टॉपिक पढ़ के रखिएगा। तो आगे आपके फिर जो मैं पढ़ाऊंगा वो चीज समझ में आएगी, और कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका जरूर से रिप्लाई करूंगा। ओके, थैंक यू।